How did I go from this to something like this? So this is a full-on glam makeup for all of you guys, and this is the first time I have done so much of makeup on my channel, like red lipstick, brown eyes. I don't think so I've done it before, but anyway, this is like a full glam guide for you, and I'll keep on explaining the product I have used and what are the pros and cons I have seen so far. So this is an important tutorial because in this tutorial I'm going to be telling you what I have faced with MAC Studio Fix foundation, and I use Tarte concealer with it. Now let's watch this tutorial. Come. Hi everybody, so today we are going to do a full glam look. तो मैं स्कैंडी ब्राउन ओ लेंसेज यूज़ कर रही हूँ आज. यू कैन ऑलवेज यूज़ फ्रेश लुक, वो मेरे फेवरेट लेंसेज हैं इन हेज़ल ब्राउन. Now winters has already started. Use your embroideries as a pack on your face. Apply it for 10-15 minutes. Leave it there. It will settle down under your skin and will prepare your skin for the makeup, okay? Now I'm gonna be using MAC Paint Pot today, and you can always use a concealer. It's just that I wanted to finish this MAC Paint Pot. It's been lying for so long, and you will see इसका color भी बहुत ज़्यादा dark नहीं है ना बहुत ज़्यादा light है, because we are going to do a brown eye makeup today. So I don't want to lighten up my eye. Now brown eye करने के दो तरीके हैं. या तो आप अपना जेल आईलाइनर या जेल आई पेंसिल ले सकते हो, या स्मज होने वाली आई पेंसिल भी ले सकते हो. उसे अपनी पूरी आई पे लगाओ और उसे अच्छी तरीके से स्प्रेड करके और उसके ऊपर ब्राउन आई शैडो लगा लो, या इस तरीके से आप कर सकते हैं द वे आई एम डूइंग इट. नाउ आई एम ड्राइंग अ स्टेंसिल फॉर माई आई लाइनर. What is that? This is basically a guideline if you want to put eyeliner or not, and if you want to smudge your eyeshadow. Okay, so मुझे आज smudged eyeliner लगाना है. तो सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर की पेंसिल लगाई एज एन eyeliner, and now I'm putting black eyeshadow on it. What this will do is it's gonna give a little डेप्थ टू माई आई मेकअप. इससे ना मेरी आई लैशेज थोड़ी और हैवी लगेंगी. ठीक है. नाउ आई एम यूजिंग ब्राउन ग्लिटरी आई शैडो. इसे आप अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ अ फ्लैट ब्रश टू सेटल इट नाइसली. आप अपना फिक्स प्लस भी स्प्रे कर सकते हो अपने ब्रश पे या पैलेट पे लें और अच्छी तरीके से ब्रश डिप करें एंड देन अप्लाई द ग्लिटरी आई शैडो. I'm taking L'Oreal Gel Eyeliner here. This is my favorite eyeliner. Doesn't goes anywhere. तो देखो जो आपने ब्राउन कलर की आई पेंसिल लगाई थी ना, अब आपको आसानी होगी to join the dots. Now I always like to keep my eyeliner thinner from the inner side of my eyes. इससे मेरी अगर आपकी आईज़ छोटी भी हैं, जैसे मेरी आईज़ में अगर मैं इनर कॉर्नर पे ज़्यादा डार्क आईलाइनर लगा लूँ तो काफ़ी अंधेरा लगता है और डीप सेट आईज लगती हैं. इसलिए आई लाइक टू यूज़ वेरी थिन लाइन ऑन द इनर कॉर्नर एंड थिकर ऑन द आउटर साइड. It also makes your eyes look elongated as well. Just in case if you don't understand any part of this tutorial, you can always DM me or comment down here. I'll reply. Okay. Now I'm going to apply eyelashes today. For that what happens is अगर आप अपनी फ़ोटो खींचते हो तो क्या होता है कि आपकी आई ना एम्प्टी लगती है अगर आपने अपर लैश लाइन पे आईलाइनर ना लगाया हो. आई एम यूजिंग आई लैश. दैट्स वाई आई एम अप्लाइंग डार्क ब्लैक आईलाइनर ऑन द अपर आई लैश लाइन. मैंने अच्छी तरीके से डुओ ग्लू लगा ली है, इसे फ्लेक्स कर लिया है, थोड़ा सा लूजन अप कर लिया है. अब इसे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रखेंगे. मीनवाइल जितना भी ग्लिटर फॉल आउट होता है उसे आप हटा लीजिए. यू कैन ऑलवेज टेक अ plucker and apply your eyelash and then press it from the back area or using your fingers. I like to use both, sometimes my fingers and sometimes the plucker. So now if you want to mix your natural lashes in fake lashes,
always use a curler. Now for the face makeup, I'm using primer by Milk Makeup और ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है. Now for my forehead where I have open pores, I'm using this Huda Beauty primer. But एक frankly बात बोलूँ तो this primer does not works without its foundation. So you will have to use both if you want to actually cover your pores and make your pores look smaller. Using NARS concealer for pigmentation coverage and under eye circles. I hope अब तक आपने मेरी concealers वाली videos देख ली होंगी to understand what are concealers and what all concealers I keep in my vanity. I used MAC Fix Plus because I'm feeling little dry today. और इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. मैंने MAC का फाउंडेशन लिया है यहाँ पे. नाउ जब भी मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, आई नेवर अप्लाई फाउंडेशन ऑन द अंडर आई एरिया एंड अराउंड द माउथ एरिया. उससे मेकअप ज़्यादा हैवी लगने लगता है और क्रीजेस भी आ जाती हैं. तो इसलिए आपको वहाँ कंसीलर की ज़रूरत होती है, सिर्फ फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती. यहाँ पे मैं 2 शेड लूँगी टार्ट के एंड आई विल मिक्स इट. या this is how I'm gonna mix it and will make my shade not too dark not too light. तो मुझसे गलती ये हुई इस मेकअप में कि मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा कंसीलर ज़्यादा लगा लिया which actually made me feel very dry. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि MAC फाउंडेशन भी ड्राई है, थोड़ा सा मैटिफाइंग है स्टूडियो फिक्स, और टार्ट भी ड्राई है. तो मैंने आपको अब मेरी कंसीलर वाली वीडियो में बताया था कि अगर दोनों प्रोडक्ट्स आप थोड़े से ज़्यादा ड्राइंग यूज़ कर लोगे तो हो सकता है कि आपका बेस थोड़ा सा ड्राई हो जाए. नाउ सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन लाइक दिस ताकि आपका बेस भी ना फटे. ओके तो यहाँ मैंने एम्ब्रॉयलेस अच्छे से लगाई थी मेरे फेस पे जैसा मैंने आपको बताया था. तो मेरा बेस तो नहीं फट रहा था और मेरा बेस जनरली फटता भी नहीं है बिकॉज आई नो हाउ टू हैंडल इट. कैसे हैंडल करना है? आप अपने फेस को हाइड्रेशन देते रहोगे जैसे जैसे मेकअप करोगे. तो देखो यहाँ मैंने MAC Fix Plus दोबारा यूज़ करा. नाउ आई एम टेकिंग माई ब्रॉन्जर. नेवर अप्लाई इट डायरेक्टली, ऑलवेज टेक इट ऑन द बैक ऑफ योर हैंड, देन स्टार्ट अप्लाइंग इट, दैट टू फ्रॉम द आउटर कॉर्नर्स ऑफ योर फेस. ओके एनीथिंग लिक्विड दैट यू आर अप्लाइंग, अगर आप बिगिनर हो मेकअप में तो हमेशा आउटर कॉर्नर से ही अप्लाई करोगे उसे, ताकि कोई भी गलती हो तो हेयर लाइन के पास हो और वहाँ से हम संभाल सकते हैं. लेकिन अगर फेस के मिडल में गलती होगी तो वहाँ से फिर वापस जाने में काफ़ी एफर्ट लगता है. टेकिंग ब्लश अगेन ऑन द बैक ऑफ माई हैंड और यू कैन टेक इट ऑन द पैलेट एंड देन अप्लाई इट. नाउ हियर you have to make sure everything is well blended. Now I took a break. My little one came from school and we had a chit chat session, but I could not wait too long because the base was getting dried up. Now here I felt that the under eye was looking a little dark, so I took one more dot of Tarte concealer and here I felt it went a little extra in terms of extra product. Okay, so I had to manage it. I knew I'm not gonna take off my base और मैंने manage कर लिया था, आप लास्ट में देखोगे. नाउ हियर आई अगेन स्प्रेड फिक्स प्लस और इसे ना अब अच्छी तरीके से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से मेरे फेस में पुश कर दिया था. टाइम फॉर द पाउडरिंग. यही फिक्स प्लस आपको ड्राई होने देना है थोड़ी देर तक, उसके बाद पाउडरिंग करनी है, वरना आपका पाउडर वहीं चिपक जाएगा जहाँ पे आपका फेस गीला है. ओके दिस इज Givenchy Prism Libre. आई थिंक दिस इज इन शेड 3. I'll put it in the description box as well. And now you make sure everything is well blended, your eye makeup. Now अगर आपकी फाइन लाइन ज़्यादा हैं इस तरीके से, जैसे मेरी भी अब थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो आप इन्हें कैसे केमोफ्लेज करोगे? टेक अ ब्राउन आई शेडो जो आपने ऊपर यूज़ किया है और यहाँ पे आप अंडर आई जो आपका लोअर लैश लाइन है वहाँ पे आप उसे अच्छे से अप्लाई करोगे. नाउ जितनी आपकी फाइन लाइंस हैं आप उतना मोटा या पतला इसे कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर लाइकिंग. ओके फिक्स प्लस अगेन. आई एम गोना डू माई ब्राउज जब तक फिक्स प्लस सूख जाएगा.
और अंडर आई के बारे में जो मैं कह रही थी कि बहुत ज़्यादा आई शेडो ना लगाइएगा कि बहुत ही मोटी आपने लाइन कर ली, क्योंकि फिर उसे हटाना भी मुश्किल है। तो थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली इंक्रीज द लोअर लैश लाइन का आई शेडो का थिकनेस। Today I'm using red lipstick, but you can always use nude lipstick with it, and I love nude lipsticks on this sort of makeup. It looks very nice, something like bronzed goddess look, okay? This is a full glam makeup, guys. If you want very nice, chic and less makeup, let me know in the comments. I'll put that kind of tutorial as well. This was it for the day. On this note, this is Neha Devgan saying bye bye.